है, वो सभी रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्षेत्र में बड़े ही अपनी कहना चाहिए कि उनका विशेष योगदान रहा है। डॉक्टर सुप्रिया भालेराव जी, डॉक्टर पवन गोदतवार जी, डॉक्टर किशोर पटवर्धन जी, डॉक्टर योगेश पांडे जी, इन सभी का जिनका मार्गदर्शन इसमें होने वाला है, तो मैं माननीय वाइस चांसलर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो अपना मार्गदर्शन दें कार्यक्रम के प्रारंभ में उद्घाटन भाषण के। माननीय वीसी सर से मेरा अनुरोध है, सर कृपया अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय वीसी सर डॉक्टर BR रामकृष्णा जी सर, जो अभी वर्तमान में वीसी हैं एस व्यासा विश्वविद्यालय बेंगलोर में। सर प्लीज आप अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। और आदरणीय महेश व्यास जी and other dignitaries of Vishwa Ayurveda Parishad, it gives me an immense pleasure to be with all of you. आयुर्वेद क्षेत्र का जो उन्नति इसके ऊपर रादर खड़े हो चुका है। अब सारे दुनिया एक्सपेक्ट्स एविडेंस बेस्ड रिसर्च। आज योगा का स्थिति देखिए, सारे विश्व में yoga has attained its zenith. It is just because many scientific papers have been published at the international level and also very high impact journals. If we want to make Ayurveda Vishwa Guru, rather Ayurveda being the wisdom of our country, if it has to go to every nook and corner of the world, it is mandatory that we have to show and we have to substantiate and prove that whatever said in Shastra is true. Many times we believe that idam agama siddhatvat pratyaksha phaladarshanat mantravat sampravoktavyam na mimamsam kathanchana. But in the present scenario, Mimamsa is required, and for Mimamsa, Samshodhana is indeed the necessity. But the modern language of communicating the research is through statistics, biostatistics or medical statistics. It is very easy to understand. Earlier days, people is to understand the total result of a particular problem through a conclusive shloka. Many times we understand Guduchi ho, Pipli ho, it has got, these are the actions, these are the uses. But whatever has been composed in the form of a sutra, I say it is the conclusive part. But today, similar to the shlokas, which has been said in the Ayurvedic Shastra, in any Nighantus for that matter, that conclusion is expressed in the form of sutra through biostatistical pictures or bars or different pictorial presentation. And our people, those who are enemies, those who are involved in research, should necessarily take part, should understand and should take part in biostatistics, and then it becomes more scientific. So therefore, I am so convinced that this type of seminar, webinar is going to throw a lot of light on the youngsters, and there is a bridge between the elderly people and the youngsters today. We belong to the category of 4 decades earlier, but our knowledge of biostatistics or our research methodology compared to the present youngsters, it is very less. But the present day students and the youngsters, I am sure they are well conversant with the technology, and they are also well conversant with the statistical methods and the research methodology.
So in this occasion, I wish that this 1 week program become a very successful story, and I wish all the best. Jai Vishwa Ayurveda Parishad, Bharat Mata ki Jai. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपने आप में एक आपके द्वारा दिया हुआ बहुत बड़ा सौभाग्य है, और जो हम सभी को मिला, आपका सानिध्य हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर हरीश बाकुनी जी से निवेदन करूंगा कि अपना जो उद्बोधन है, जो प्रेजेंटेशन है, वो सर आप कृपया करके शुरू करें। डॉक्टर हरीश बाकुनी जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं विश्व आयुर्वेद परिषद को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने काइंडली मेरी जो स्क्रीन शेयरिंग को इट इज डिसेबल्ड, तो प्लीज इसको मेरे को अलाउ कीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आप जो भी स्टडी डिजाइन आप प्लान कर रहे होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, मैं आज उस पर मेजरली बात करूंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग की व्हाट वी आर डूइंग ऑन द क्लिनिकल रिसर्च, एज यू नो, सर थोड़ी सी आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, और साथ ही मैं डॉक्टर विनोद गौतम जी से निवेदन करूंगा कि बीच में जो भी क्वेश्चंस हैं वो लेते रहें, तो सेशन के बाद में हम उसको कंक्लूड हम प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। देखिए कोरोना के समय में हम ये जो चल रहा है ऑनलाइन वाला सिस्टम, इसमें थोड़े बहुत इश्यूज आते रहते हैं, 1-2 मिनट के अंदर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बाकुनी सर आप अपना वीडियो ऑफ कर लें, प्रेजेंटेशन हम चालू कर देंगे। आपकी आवाज थोड़ा कम नेटवर्क में भी आ जाएगी, आप प्लीज वीडियो ऑफ करें अपना और केवल ऑडियो चालू रखें, तो उससे आपको सुन पाएंगे शायद हम। ये करके देखिए। सभी पार्टिसिपेंट्स कि थोड़ा सा धैर्य बनाए, 2-5 मिनट में सब कुछ चालू हो जाएगा। ओके, एनीवे थैंक्स सर। आई एम स्टार्टिंग नाउ सर। हाँ श्योर। As far as clinical research is concerned, it is the branch of medical science that deals with the safety and efficacy of the medication, devices, diagnostic products and treatment intended for human use. तो जहां हम क्लिनिकल रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, वहां पर हम कोई भी मेडिकेशन, किसी भी तरह की कोई भी जो हम मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज ओल्ड डिवाइस और ए न्यू डिवाइस जिसको हम ह्यूमन यूज के लिए इंटेंड कर रहे हैं, एंड एनी डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट एंड ट्रीटमेंट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन यूज, और उसके लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं, दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज नोन एज क्लिनिकल रिसर्च. इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, treatment, diagnosis, if I am talking about the quality of life in certain disease, then I am talking about the chronic ailments like cancers, like HIV. So वहां पर अगर हम किसी तरह का कोई इस तरह का रिसर्च प्लान कर रहे हैं, या हमारा कोई इस तरह का हाइपोथेसिस है कि ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इस डिजीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, दैट पर्टिकुलर थिंग्स आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन क्लिनिकल रिसर्च. It provides insight into diagnosis, etiology and treatment of a disease. किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस के लिए उसमें क्या क्या कारण है जिसे हम हेतु ज्ञान बोलते हैं, और जो उसमें चिकित्सा के जो भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं उसमें क्या क्या एडवांसमेंट हो सकता है, और जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजीज या जिसकी चीजों के साथ हम उसको इनकॉर्पोरेट करें, अगर उस रिलेटेड में हम कोई क्वेरी लेके चल रहे हैं और उसके रिगार्ड में कोई रिसर्च एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर चीजें भी क्लिनिकल रिसर्च में इनकॉर्पोरेट होती हैं. Given allotted this particular topic
there are various study design in clinical research. As you can see, observation or interventional studies, descriptive and analytical study, cross-section or longitudinal study, cohort or case control study, controlled or non-controlled study, and preclinical and clinical study. These are the various study designs that are used in clinical research. In every thing that has been written down, I will explain. I will talk about these things. So these are the various type of the clinical trials on the basis of the purpose. How we are doing, हम क्यों कर रहे हैं? तो जैसे मैंने आपको बात की थी, there are many of the trials like prevention trials. Prevention trials वो trials होते हैं जहां पर किसी भी disease की entity को prevent करने के लिए अगर हमारे पास कुछ modalities हैं, फोकलोर में यूज हो रही हो या हमारी कॉमन लाइफस्टाइल में यूज हो रही है, लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर चीज को टारगेट करके वहां उसे प्लान करें, एक पर्टिकुलर वहां पर देखें कि ये चीज है. सपोज मैं बात करूं, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि तुलसी वायरल लोड को कम करती है, ये एक हम जानते हैं. और लेकिन इस फैक्ट को अगर हम रिसर्च बेसिस पे उस ट्रायल पे बात करें तो इट प्रिवेंट्स द वायरल इन्फेक्शन. तो उसके लिए हम एडमिनिस्टर करें तुलसी बहुत लंबे टाइम तक और उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स देखें, उसका अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उनमें क्या इम्पैक्ट आया है. दिस टाइप ऑफ स्टडीज आर फॉर प्रिवेंटिव स्टडीज. आज के सिनेरियो में बात करूं, अगर मैं कोविड-19 के रिगार्ड में बात करता हूं तो यूज ऑफ द मास्क, जिसमें बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हो रही हैं कि यूजिंग द मास्क वो कितने हद तक आपको वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है. दिस सॉर्ट ऑफ स्टडीज आर फॉर प्रिवेंशन ट्रायल्स. सेकंड, किसी भी करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन से लक्षण होंगे जिसके बेस पे हम ये सोचें कि ये इस पर्टिकुलर डिजीज को स्क्रीन करने में हेल्प कर सकती है, उसकी स्क्रीन हेल्प कर सकती है. उस तरह के जो भी आपकी स्टडीज होती हैं, दो स्टडीज आर लेबल्ड एज स्क्रीनिंग ट्रायल्स. सर हरीश सर, स्क्रीनिंग काफी हरीश सर चीजों के लिए आप हरीश सर करते हैं. और स्पेशली अगर कहें कि कोई भी हेल्थ कंडीशन है, उसको अगर हम स्क्रीन आउट करें, बात करूं कि हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जो ब्रेस्ट लंप के साथ आते हैं, उसमें से कितने पेशेंट ऐसे हैं जो फाइब्रोएडिनोसिस के हैं और कितने केसेस ऐसे हैं जो फाइब्रोएडिनोमा के हैं, इसमें से कितने बेनाइन हैं और कितने कैंसरस हैं, और उसमें जो एज रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, किस एज में ये ज्यादा प्रिवेल करता है. इस तरह के अगर हम ट्रायल्स करते हैं तो उसको हम स्क्रीनिंग ट्रायल्स बोलते हैं. और ये बेसिकली मैं जब बात कर रहा हूँ, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ हम ये ट्रायल कर रहे हैं, ये उस चीज पे डिपेंड करता है. To the next topic, next type, that is diagnostic trials. These are basically conducted to find better test or procedure for diagnosis of a particular disease or a condition. सपोज अगर हम पुराने जमाने में बात करें तो अगर हम कभी लीवर प्रोफाइल पे बात करते थे तो हम कहते थे कि वी हैव टू गो फॉर द सीरम बिलिरुबिन और उसके एलएफटी वगैरह को हम देखें. लेकिन लेटर ऑन जब हमने देखा कि कोई केस हमारे सामने है जो कि क्रॉनिक लीवर डिजीज का है, तो उसके पीछे क्या एटियोलॉजी हो सकती है उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हमने आगे HbA1c या हेपेटाइटिस बी या एलटीएससीवी इस तरह के जो डायग्नोस्टिक टूल धीरे धीरे डेवलप किए. आज के में जो अभी हम आरटीपीसीआर कर रहे हैं वो टेस्ट किस तरह से वायरल डिटेक्शन में हेल्प करता है. इस तरह की जो न्यूअर टेक्निक्स हैं उनको टारगेट करके जब कोई डायग्नोस्टिक अप्रोच के साथ किया जाता है, दोस क्लिनिकल ट्रायल्स आर लेबल्ड एज डायग्नोस्टिक ट्रायल्स. अगली जो कंडीशन है वो है ट्रीटमेंट ट्रायल्स. बेसिकली ये सारे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रग्स, खासकर मैं अगर आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्ट में बोलूं कि हमारे पास एक मेडिसिन है जो किसी इंडिकेशन में है, लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसके साथ कुछ दवा कंबाइन कर दी जाए और ये पर्टिकुलर किसी और डिजीज में इंडिकेशन में आ सकती है, तो वहां पर उस तरह की ट्रीटमेंट को टारगेट किया जाता है. उन ट्रायल्स को हम ट्रीटमेंट ट्रायल्स कहते हैं. सो these are nothing but the experimental treatment, new combinations of the drug and new approaches, especially if I'm talking about the surgical procedures.
तो सपोज वी आर डूइंग स्टार सूत्र, जो सिंपल हम स्नोई चार्ट से कर रहे हैं, हमने उसको और इनोवेट किया, हमने उसमें गूगल चार्ट सूत्र और उसके साथ उसको किया, तो वो उसी जो हम जो थ्रेड का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट की मॉडलिटी में ही है। वो पर्पस रहता है कि इसमें आगे हमारे टारगेट क्या थे, हमारा एंड पॉइंट क्या था कि इसमें पेन कम रहेगा, इसमें हीलिंग टाइम कितना आपका पहले से हिस्टन हो रहा है। इस तरह के जो ट्रायल्स प्लान किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रीटमेंट ट्रायल्स। नेक्स्ट वन इज supportive care trials और also known as quality of life trials, इसके बारे में मैंने अभी पहले भी चर्चा की थी। These trials are explored for new ways to improve comfort and quality of the life for the individual. आज के सिनेरियो में बात करूं, we are witnessing lots of cases of cancers, lots of cases of chronic renal failure. वहां पर जो पेशेंट के साथ जो भी चीजें हो रही है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम जो जो चीजें कर सकते हैं, ऐसे जो भी चीजें हैं जो वेज को एक्सप्लोर करें जो कि उस पर्टिकुलर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। और उसके लिए बहुत सारे आपके पास वैलिडेटेड टूल्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करती है। अगर इस तरह के पर्पस के साथ हम कोई क्लिनिकल ट्रायल प्लान कर रहे हो, also called quality of life trials. Coming next, तो हम अलग अलग स्टडीज की बात कर रहे थे अभी जो हमने इनिशियली बात की थी, तो I will talk about, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल स्टडीज। जैसा कि नाम बता रहा है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज आर बेसिकली नथिंग बट टू ऑब्जर्व द थिंग्स। तो ऑब्जर्व रिपोर्ट व्हाट इज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना और उनके जो फैक्ट्स है उसके जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उनको रिपोर्ट करना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इन्वेस्टिगेटर डज नथिंग टू अफेक्ट द आउटकम। इसका जो आउटकम है उसको इन्वेस्टिगेटर कहीं भी अफेक्ट नहीं करता। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी बहुत पुअर इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रोड्यूस करता है। जिस तरह के कई एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं लाइक कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडीज आर नथिंग बट द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। सपोज हम बात करें कि हम देख रहे हैं कि कोई डिजीज हमारे पास आमवात के कितने मरीज हैं, हमारे पास प्रमेह के कितने मरीज आ रहे हैं, हमारे पास कैंसर्स के कितने पेशेंट आ रहे हैं, हम उसका एक सर्वे स्टडी है, उसका एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे करते हैं और उन सर्वे के बेस पे फैक्ट फाइंड करते हैं कि क्या क्या डिजीजेस सोसाइटी में ज्यादा प्रिवेल कर रही हैं। दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। और उसके बेस पे हम आगे की जो भी प्लानिंग्स और जो भी चीजें हैं एग्जीक्यूट करने के लिए उसको हम आगे अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए प्लान करते हैं। The second thing is interventional study. Interventional study is nothing, इसमें कुछ ना कुछ आप इंटरवीन करोगे। Investigator make intervention and monitor the outcome. अब इसमें कर क्या रहे हैं? It determine whether experimental or new ways of using treatment are safe and effective. तो जितने भी तरह के जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज हम आज की डेट में जितनी भी चीजें कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन हम किसी भी पेशेंट को किसी भी डिजीज के लिए दे रहे हैं, तो वो हमारा एक इंटरवेंशन है। और उस इंटरवेंशन के साथ न केवल मेडिसिन, उसके साथ साथ कोई भी प्रोसीजर, पंचकर्म के इत्यादि के जो भी प्रोसीजर्स हैं या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है, दीज आर इंटरवेंशंस। और उन इंटरवेंशंस को जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा जो सबसे मेन टारगेट होता है, वेदर दीज ट्रीटमेंट्स आर सेफ एंड इफेक्टिव। तो सेफ्टी पैरामीटर्स, हमारे सामने बहुत सारे बायोलॉजिकल मार्कर्स हैं जिसके बेस में हम देखते हैं वेदर इट इज सेफ, लिवर टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रही, किसी तरह की आपकी नेफ्रोटॉक्सिक तो नहीं है, वो उसकी सेफ्टी पैरामीटर्स को एसेस करते हैं। और ये भी जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं ये इमीडिएट और डिलेड दोनों रिस्पॉन्स देखे जाते हैं कि जब तक आपने इंटरवीन किया उस समय कोई भले ही उसको कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं आया, लेकिन प्रोलॉन्ग कोर्स के बाद क्या उसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट विटनेस हुआ, ये सारी चीजें इंटरवेंशनल स्टडीज में देखी जाती हैं अगर मैं सेफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ।
दूसरा एंड पॉइंट जो इसका होता है वो होता है इफेक्टिव कितना है ये ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट अभी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है, वेदर इट इज बेटर देन दैट या उसके बराबर ही ये ट्रीटमेंट है। अगर उसके बराबर ट्रीटमेंट है तो ये क्या ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इंटरनेशनल स्टडीज में हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे आउटकम है वो उस लेवल पे हमको उन मेजरमेंट्स पे इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। All experimental and clinical trials are international studies because we are intervening something. The investigator is intervening something, whether it is medication or any procedure. वो सारी जो जितनी भी चीजें आएंगी तो वो इंटरनेशनल स्टडीज कहलाती हैं। Coming to next, descriptive and analytical study. Descriptive studies, various surveys and fact-finding inquiries. आप कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो? सर्वे कहीं भी जो इंक्वायर करते हैं किसी भी पेशेंट से, इस तरह की जितनी भी आपकी है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती हैं। इस स्टडी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है टू डिपिक्ट द पार्टिसिपेंट इन एन एक्यूरेट वे। तीन तरह से आपके सामने आती हैं, वन इज ऑब्जर्वेशनल, सेकंड इज केस स्टडी एंड थर्ड वन इज सर्वे। जब हम ऑब्जर्वेशन स्टडी की बात करते हैं तो हम इसमें जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके पार्टिसिपेंट का पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं। अगर ये इस एज में हुआ तो इस एज में होने के पीछे क्या रीजन थे, और अगर इन एज पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं हो रहा है तो उसमें क्या रीजन है। जैसे हम कोविड में कई चीजें में देखते हैं कि बच्चों में ये उस लेवल पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसी की जो अब आगे की फर्दर स्टडीज में हमको ये आउटकम मिला कि वो किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्प्रेड द डिजीज, वो होस्ट हैं जो उसको स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह की जो डिटेल ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का ही एक पार्ट है। सेकेंड वन इज केस स्टडी। इट इज एन इन डेप्थ स्टडी, बहुत डेप्थ में ऑफ एन इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मींस अगर सपोज वी हैव अ केस ऑफ रक्ताभिसार, जीर्ण रक्ताभिसार, या हम ये कहें कि आज के सिनेरियो में कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट हमारे पास है। एक पेशेंट आपके पास आया जिसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज आप जानते हैं जो भी चल रहा है, और आपने उसमें कुछ एक ट्रीटमेंट दिया और उस ट्रीटमेंट पूरी तरह से ऑब्जर्व किया कि ये ट्रीटमेंट देने से क्या इफेक्ट आया, बेनिफिशियल रही, क्या चीजें अनटूवर्ड्स थी, उस चीज की इनडेप्थ पूरी आपका रिपोर्ट करना, जिसके बारे में एक एक चीज में कि ये इस एज ग्रुप में ज्यादा है, किन किन लोगों में उनकी डाइटरी हैबिट्स कैसी थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उस लाइफस्टाइल का इस डिजीज पे क्या इम्पैक्ट था। इसके एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इनडेप्थ रिकॉर्ड ये स्टडी में किया जाता है। दिस इज ऑल्सो जो दूसरा तरीका है डिस्क्रिप्टिव स्टडी को करने का। एंड थर्ड वन इज सर्वे स्टडी। इसमें बेसिकली इंटरव्यूज जो सर्वे हम करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कई सर्वेज आप जानते हैं न्यूज चैनल्स में देखते हैं, अलग अलग तरह के सर्वेज जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनर्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जो भी उसमें स्टडी में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और वो पूरी डिटेल्स में उनसे एक एक पॉइंट पे सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं और उन जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ब्रीफली और बहुत डिटेल से समझा जाता है। और ये भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही अगर हम बात करें तो वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। सपोज मैं ये देखना चाहूँ कि मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ वहां पर मधुमेह के कितने मरीज हैं और जो मरीज हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसमें किन पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये ज्यादा हो रहा है, उनके खान पान का, उनके लाइफस्टाइल का, इन चीजों का उसमें क्या इम्पैक्ट है, फैमिली हिस्ट्रीज उसके साथ किस तरह से अफेक्ट कर रही है। इस तरह से अगर मैं एक सर्वे फॉर्म बनाऊं और क्वेश्चनर तैयार करके ये सारी चीजें ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जिसके बेस पे आगे उसकी जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं वो फर्दर रिसर्च में बहुत यूजफुल हो सकती हैं कि हमको टारगेट किन सब्जेक्ट्स को करना है, किन एरियाज को करना है। तो वहां पर जियोग्राफिकल एरिया को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया में ही ज्यादा है तो इस एरिया में ज्यादा क्यों है। अगर ये सर्वे में फाइंडिंग आती है
तो वो पूरी जो हम डिस्क्रिप्शन के साथ डिटेल्ड आपकी जो सर्वे या स्टडी करते हैं, जो फैक्ट फाइंड करते हैं, दीज आर कॉल्ड। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल स्टडी। Analytical study used for the information already available for the researcher. Means we have the informations और हम उस information को gather करके उसको analyze करते हैं, उसका critical evaluation करते हैं उस पूरे study material का जो आपके पास होता है। So in epidemiology, especially अगर मैं epidemiological survey या उससे कर रहा हूँ, तो analytical studies aim to gain knowledge on the quality and amount of the influence that determines if it has any occurrence with the disease or not. ये बहुत ही important चीज है, क्योंकि हम खासकर कई जगह जब हम देख रहे होते हैं इन चीजों में, जैसे हम कई रिस्क फैक्टर्स को एसोसिएट करने की कोशिश करें कि अगर मान लिया हार्ट डिजीजेस ज्यादा हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होंगे, और वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होगा कि इस एरिया में पर्टिकुलर खान पान कैसा है। जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसका इवैल्यूएशन करके उन फैक्ट्स को समझ के हम आगे का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। It is also defined as comparative study designed to reach causal interfaces about hypothesized relationship between risk factors and outcome. Suppose हम केवल एक सिंपल ये करें कि हमने देखा कि जो कुछ स्मोकर्स हैं और वो स्मोक कर रहे हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर है, तो उससे होने वाले उनके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारी जो हम एक एक चीज की जो एनालिसिस करते हैं उनको हम एनालिटिकल स्टडीज करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल एंड लैब स्टडीज। दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हैं, दीज आर कोरिलेशनल रिसर्च जिसमें हम लंबे समय तक उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं और सेम वेरिएबल के बीच में यूज करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी often used in psychology and track the same people. Suppose a patient is having bipolar disorder, तो हमने उसको बहुत लॉन्ग पीरियड तक ऑब्जर्व किया, उसके एक एक चीजों को हमने देखा, तो हमने देखा कि उन चीजों का जो भी इम्पैक्ट है, क्या उसकी रिलीजियस वैल्यूज, की कल्चरल वैल्यूज, उसके जियोग्राफिकल पैटर्न के साथ उसका कोई एसोसिएशन है या नहीं। तो उस तरह की जो स्टडीज हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहलाती हैं और मोस्टली ये आपका साइकोलॉजी में यूज की जाती है। और इसका जो सबसे जो मेन ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो चेंजेस हैं जो वो कितने एक्यूरेट हैं इन चीजों को एनालाइज करने के लिए हम इसको देखते हैं। सो बस इसके साथ एक इश्यू ये रहता है, क्योंकि बीइंग इट इज एन लॉन्ग पीरियड ऑब्जर्वेशन है, इट इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ स्टडी। तो जिस तरह की कई कोहॉर्ट स्टडीज होती हैं या पैनल स्टडीज होती हैं, दीज आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। नेक्स्ट कम्स क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम। तो जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन और ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट एट एन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही हम ये सारे ऑब्जर्वेशंस को ले रहे हैं। सपोज मैं अब सेंसस की बात करूं, मतलब हमने जनगणना करी, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में वो जनगणना हो रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सबसेट में कौन सी डिजीज प्रिवेल कर रही है, इस डिजीज का प्रिवेलेंस है सोसाइटी में, उसके पीछे मेन कारण क्या है, इंटरफेरेंस कॉज क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो बहुत सारी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो इसमें कई बार जो रूटीन डाटा होता है वो कई बार प्रॉपर या स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर नहीं करता। सपोज अगर मैं बात कहूं कि
अल्कोहल कंजम्पशन और सिरोसिस ऑफ लीवर, उसकी प्रीवियस अल्कोहल इनटेक का कोई मतलब उसके साथ क्या लिंक है और उसके साथ उसने कितने पीरियड तक लिया है, उसके बीच में वो उस लिंक को कई बार बहुत प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता है। बट इसके जो यूजेस हैं वो डायग्नोसिस और स्टेजिंग ऑफ ए डिजीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में ही इसको असेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल होगा कि अगर हम किसी हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं और उसकी एमआरआई फाइंडिंग है, सपोज उनको साथ में एनालाइज कर रहे हैं, establishing normal lab values of the normal subjects, इस तरह के जो सर्वे हैं वो सारे के सारे आपके क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के अंदर फॉल करते हैं। तो these are another study design that we take usually. Next comes the prospective and retrospective study. Prospective study, study to observe the future outcome. कि ये सब हुआ, इसके आगे क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा. These are called prospective studies. Cohort study that follows over a time a group of the similar individuals. एक particular individual है, इसको एक बहुत लंबे टाइम तक फॉलो किया गया और उनको फॉलो करने के बाद उसका फ्यूचर आउटकम क्या हुआ, ये prospective. ನಂದು ಇದು ಚೀಟಿನೇ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದೈತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂದದ ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ನೋಡ್ದೆ, ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ. बहुत हेल्प करता है. जैसे अगर मैं बात करूं कि वन हु इज स्मोकर है और हमने उन स्मोकर्स को लंबे टाइम तक ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद हमने उसके आउटकम देखे, फ्यूचर आउटकम, कि आगे जाके इनको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं. सपोज लंग कैंसर की बात करें या सीओपीडी की बात करें, तो ये उसके फ्यूचर आउटकम है, लेकिन वो जो उसका कारण है उसके पीछे उन कारण है स्मोकिंग. तो दीज सॉर्ट ऑफ स्टडीज आर प्रोस्पेक्टिव स्टडीज. तो टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ ए डिजीज, कि उसके आगे इसके पर्टिकुलर निदान सेवन से आगे जाके ये चीजें हो सकती हैं, अगर उसको देखकर अगर हम करते हैं तो उस तरह की स्टडीज को प्रोस्पेक्टिव स्टडीज कहते हैं. एक और अच्छा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है तो रिस्क फैक्टर्स को समझने के लिए, कि अगर मान लिया हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल का बीएमआई देखा और उस बीएमआई के बाद ये भी देखा हमने, फ्यूचर आउटकम हमारा ये है कि उसको रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज या उसको कैंसर होने के कितना रिस्क है, अगर उसकी बीएमआई कम है या ज्यादा है. उस बेस पे जब हम किसी बीएमआई को अगर हम एक बेस मान के चलें और उसके आउटकम को अगर हम देखें, तो इस तरह की जो भी स्टडी होती है जो फ्यूचर आउटकम को फोकस करती है टू ऑब्जर्व फ्यूचर आउटकम, दीज आर कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव स्टडी. नेक्स्ट वन इज retrospective. Retrospective means अब ये बीमारी हो गई, लेकिन इस बीमारी के पीछे कारण क्या था. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टडी है में, एक्चुअली वो वहां पर बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह का कंजम्पशन होता था. तो उस एरिया में ये देखा गया कि जो भी वहाँ के मेल इंडिविजुअल्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द मेल इंडिविजुअल आर डाइंग एट द एज ऑफ 40 to 45. मतलब वहाँ जो मीन एज भी थी वो 50 से ज्यादा नहीं थी वहाँ के मेल्स की. तो ये वो लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये डेथ क्यों हो रही है, और मैक्सिमम जो डेथ्स थी उनमें सब में जब उनको ऑब्जर्व किया गया तो सब हार्ट डिजीज से मर रहे थे. तो फिर उसके बाद वहां पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वहां के उनकी लाइफस्टाइल को देखना शुरू किया. तो धीरे धीरे जब उनको पता चला कि दे आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट और स्पेशली चीज, बटर और इस तरह की जो चीजें हैं, उनका नाश्ते से लेके हर डाइट में वो चीजें हुआ करती थी. जब उन्होंने फैक्ट फाइंड करने शुरू किए तो जब उन्होंने लंबे टाइम तक इसको फॉलो किया, दे फाउंड कि दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट कल्प्रिट जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो रही है.
तो उन्होंने कन्विंस किया उस घर की फीमेल्स को, जो उनकी गृहिणियां थी, कि आप इनकी डाइट से, क्योंकि इमीडिएटली दे आर यूज्ड टू टेक दैट पर्टिकुलर डाइट, तो उन्होंने कहा आप धीरे धीरे थोड़ा कट करते चलो, ब्रेकफास्ट में थोड़ा कम करो, फिर उसके बाद लंच में कम करो, फिर डिनर में करो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा करते करते 4-5 साल 6 साल बाद ये ऑब्जर्व देखा उन्होंने, जब आउटकम को देखना शुरू किया कि जो डेथ हो रही थी, जो इस पर्टिकुलर एज स्पैन में 40s to 50s के बीच में, वो डेथ्स कम हो गई। हुआ क्या, उन्होंने वहां पर इफेक्ट देखा, इफेक्ट था वहां पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेकिन वो हो किस कारण से रहा था, उसको उन्होंने पीछे जाके टू लुक बैक व्हाट इज हैपनिंग देयर, तो उन्होंने देखा कि ओवर कंजम्पशन ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट, लॉट्स ऑफ फैट, चीज, बटर, मक्खन इत्यादि, इस तरह की चीजें वो बहुत मात्रा में सेवन कर रहे थे। और जैसे धीरे धीरे उन्होंने उसको कट करना शुरू किया, दे फाउंड कि उसके बाद के उसके इम्पैक्ट सोसाइटी में दिखने लगे, और वहां पर जो कैजुअलिटीज जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से हो रही थी वो काफी हद तक मिनिमाइज हो गई। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी एंड ये प्रूव करता है कि किसी पर्टिकुलर जोन में अगर कोई चीजें बहुत ज्यादा हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। आप जानते हैं गोरखपुर में आपने सुना होगा जैपनीज बहुत ज्यादा होते हैं, तो कारण जब पहले तो बच्चे ऑब्सक्योर पता चल रहा था कि बच्चों की डेथ हो रही है, क्यों हो रही है, लेटर ऑन जब उसको फैक्ट फाइंड में गए तो पता चला कि ये कारण है। धीरे धीरे वहां पर आपका मॉस्किटो एरेडिकेशन और इस तरह के प्रोग्राम्स किए गए, लेकिन वो चीजें तभी पता चली जब वहां पर उन्होंने ये जो डिजीज हो रही है इसके पीछे कारण क्या है, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस दे गॉट टू नो कि ये मॉस्किटो बॉर्न है, एंड अल्टीमेटली से सारी चीजें हो रही है। और अब fortunately those deaths are very much minimized. So study design, that is retrospective study. And coming to next study, that is cohort study. What is cohort? It is a group of people who share common characteristics or experience within a defined period. मतलब उनकी अब मैं कहूँ या तो एज ग्रुप सेम हो, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एज ग्रुप सेम हो या उनकी बीएमआई सेम हो, या जिस तरह से भी आप कुछ भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हो, that set of people is that is called cohort. It is a form of longitudinal observational study used in medicine for an analysis of suspected risk factors and follows a group of people who do not have the disease. अब इसमें अंतर बाकी जो आपने अभी प्रोस्पेक्टिव और उस स्टडी में अंतर क्या है, मतलब सपोज हमने कुछ सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर समझा, सपोज मैंने अभी एक एग्जांपल पहले भी दिया कि अल्कोहल, ओवर कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल में लीड टू सिरोसिस ऑफ द लिवर, ये एक सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर था। तो उसमें से हमने दोनों सबसेट उसी ग्रुप के, उसी एज के, उसी लोगों को देखा, वन हु आर कंज्यूमिंग, एक ग्रुप तो वो हो गया, और वन हु आर नॉट कंज्यूमिंग, और दोनों पे ही हमने देखा कि जो रिस्क डेवलपमेंट है या डिजीज होने में उसकी कितनी बड़ी भूमिका है। ये तो एक सिंपल मैं अल्कोहल के एग्जांपल से दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टडीज पहले हुई हैं, मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करूंगा। अवेलेबल साइंटिफिक मेथड फॉर मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ द सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर। सपोज जैसे आप ट्रीटमेंट में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, ओबेसिटी की बात करें, या हम स्मोकिंग की बात करें, या अल्कोहल की बात करें, या टोबैको की यूज की बात करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करें, दीज आर वेरियस रिस्क फैक्टर्स। लेकिन रिस्क फैक्टर्स में जो लोग इनके साथ एसोसिएटेड हैं, ओबेस हैं, उनमें क्या क्या चीजें आ रही हैं इफेक्ट, और जो नहीं है उनमें आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरीके से जब हम स्टडी प्लान करते हैं तो वो जो रिस्क फैक्टर का असेसमेंट करने के लिए सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर को असेस करना, this is cohort study. Can be prospective and retrospective both. अगर यहाँ पर जैसे मैंने पीछे बात करी, अगर हम we are looking backward then it is retrospective, and अगर हम फ्यूचर को देख रहे हैं, उसका आउटकम देख रहे हैं, then it is a prospective study. Used to find out association of a particular factor within a disease process. किसी पर्टिकुलर फैक्टर, जैसे मैंने अभी बात करी कि स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करता है, तो वी आर सीइंग स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। तो हम देखेंगे जो स्मोकिंग कर रहे हैं उसमें कितने % चांसेस हैं, जो नॉन स्मोकर हैं उसमें कितने चांसेस हैं। हमने एक बड़ा
ग्रुप लिया है और सेम सेट ऑफ पीपल लिया, हमने उनको लंबे टाइम तक ऑब्जर्व किया और उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं। इसको हम उसके एसोसिएशन को, जो रिस्क फैक्टर्स के एसोसिएशन है उसके साथ असेस कर रहे होते हैं। Participants randomly divided into two groups. One group is exposed to the risk factor and other one is unexposed. तो एक ग्रुप तो जो हम देख रहे हैं कि एक्सपोज मींस वन हु इज स्मोकर एंड अदर वन हु इज नॉन स्मोकर। ऐसी दो तीन कुछ स्टडीज हैं। एक बड़ी फेमस स्टडी है फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी, जिसमें बहुत सारे जो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं उनको असेस किया गया, जिसमें ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इस तरह की चीजें, उसमें ओवर टाइम पीरियड तक ऐसे लोगों को और ऐसे जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स नहीं थे उन लोगों को लंबे टाइम तक ऑब्जर्व किया गया कि उनमें इन रिस्क फैक्टर के साथ कार्डियक डिजीज होने के कितने चांसेस हैं। ये एक स्टडी है, नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी, इस तरह की कुछ स्टडीज हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोहॉर्ट स्टडी हुई है, जो 1,20,000 नर्सेस पे हुई थी, दैट इज कॉल्ड नर्सेस हेल्थ स्टडी, जो कि 1976 में स्टार्ट हुई थी और इसमें उनकी बहुत वेरियस जो उनकी डिफरेंट कंडीशंस और उनके आउटकम्स हैं उनको स्टडी किया गया था। यस सर, बहुत बढ़िया। आपका सर, आपने वो हेलो, यस सर, आपका कोई जूम पे आपने ऐड किया हुआ है क्या सर? जूम पे कोई किसी मोबाइल को आपने जोड़ रखा है क्या? अभी अपनी जूम पे तो नहीं जोड़ रखा ना उसको? वो जूम को से आप वहां से रिमूव हो जाइए सर, वो इको कर रहा है आवाज। हाँ, जूम से बाहर हो जाओ। आप तो मोबाइल पे हो ना इस पे, आप जूम से बाहर हो जाओ सर, आपकी आवाज इको हो रही है आपस में ना। हाँ, वहां से रिमूव हो जाओ। बहुत बढ़िया चल रहा है सर सेशन, कंटिन्यू करिए जी, कंटिन्यू करिए सर। सर कमिंग टू प्रीक्लिनिकल स्टडी, हाँ यस, study to test a drug, a procedure or another medical treatment in animals. This is an experimental study, जो कि हम किसी भी क्लिनिकल स्टडी से पहले कोई भी ड्रग, जब हम ड्रग डेवलपमेंट की फेज में होते हैं तो वहां पर जो स्टडी हम करते हैं दैट इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल स्टडी। सो ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टडी, बिकॉज बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हैं उनमें ये स्टडी की जाती है और इसका जो बेसिक एम है टू कलेक्ट डाटा इन सपोर्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ न्यू ट्रीटमेंट। कि जो आप अभी वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन आ रही है उसके बारे में आप वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, तो उससे पहले जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो एनिमल पे ट्रायल होते हैं, अलग अलग मॉडल्स में जो भी सुटेबल मॉडल्स होते हैं उन सारे मॉडल्स को सेलेक्ट करके उन मॉडल्स पे हम ड्रग, जो भी हमारी जो ड्रग होती है उसको इंटरवीन करते हैं। A new intervention or a drug is screened through various stages in a suitable model of the animals to get the preliminary information about the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drug. Means how the drug is doing, how it is absorbing, इसका बायोट्रांसमिशन कैसा है, इसका एक्सक्रीशन कैसा है और इसके बॉडी में अलग अलग जगहों पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रही है, एक्सक्रीट कैसे हो रही है, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हम प्री क्लिनिकल इसमें किसी भी क्लिनिकल ट्रायल को कमेंस करने के लिए टू स्टार्ट ए क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन प्री क्लिनिकल स्टडीज। क्लिनिकल स्टडीज की बात करते हैं तो प्री क्लिनिकल स्टडीज वहां पर की जाती है जहां पर कोई भी न्यूअर इन्वेंशन या कोई भी न्यूअर ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हो, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उनमें प्री क्लिनिकल स्टडीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और स्पेशली अगर मैं अपने आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट में बात करूं कि अगर मैं कोई भी आयुर्वेद की औषधि का प्रयोग करूं और मैं जानता हूं उसके बारे में प्रॉपर रेफरेंसेस हैं,
शास्त्र में उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और उसके इंडिकेशंस भी दिए गए हैं कि ये इंडिकेशंस में ये औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो इन सिचुएशन में प्री क्लिनिकल स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी औषधि जो कि जिसका इंडिकेशन सपोज ज्वर में बताया गया है, लेकिन आप उसका प्रयोग श्वास रोग में करना चाहते हैं, नाउ इट इज ए न्यू इंडिकेशन। और जब आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को किसी नए इंडिकेशन में प्लान कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको सेफ्टी पैरामीटर्स using this particular medicine हमारे सामने वो डाटास हैं या हमने देखा है कि उसको कोई और इंडिकेशन में इसको प्रयोग करें तो वहां पर आपको प्री क्लिनिकल स्टडी करना जरूरी होता है। प्री क्लिनिकल स्टडी में हम उसकी सेफ्टी को असेस करते हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको असेस करते हैं, साथ ही साथ डोजेस जो उसके एस्केलेशन होते हैं और उसके टॉक्सिक इफेक्ट किस डोज में आ रहे हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, इस तरह की बहुत सारी जो स्टडीज होती हैं वो प्री क्लिनिकल स्टडी में की जाती है। Now coming to the clinical studies, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब clinical studies में involved रहते हैं। Research study done on the human volunteers to answer a specific health question. अब ये बड़ा important है कि specific health question है क्या? Specific health question is your research question. Suppose you are using कुटकी in मधुमेह और in liver disease या आप किसी उसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर इंडिकेशन क्या है वो आपका रिसर्च क्वेश्चन है और उसके बेस पे ही आप पूरा अपना प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। रिक्वायर्ड होता है, वो डिपेंड करता है कि इसमें प्रीवियस और अभी के इंडिकेशंस कैसे कैसे हैं। क्लिनिकल स्टडी डिजाइन एम टू इंश्योर द साइंटिफिक वैलिडिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्लिनिकल स्टडी में, जो कि एक तो साइंटिफिकली वैलिडेट करना कि जो आप कह रहे हो वो आपके जो आपने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग में आप प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग में काम कर रहे हैं, जो भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी इन पॉइंट्स हैं, जो कि आपके आउटकम मेजर्स हैं। सपोज आपका प्राइमरी आउटकम उसकी इफिकेसी है और सेकेंडरी आउटकम उसकी सेफ्टी है, तो वो दोनों चीजें आप उससे मीटअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी ये दवा जब भी आप किस तरह का कोई भी इंटरवेंशन अगली बार भी अगर कभी कहीं किया जाए तो ये अगेन सेम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी क्लिनिकल स्टडी में जो भी आप कंक्लूड कर रहे होते हो, अगर वो दूसरी बार भी वो स्टडी की जाए तो सेम कंक्लूजन ड्रॉ होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कोई बायस रहा है या स्टडी डिजाइन में या किसी प्रोटोकॉल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहा होगा। क्लिनिकल स्टडी बेसिकली वैलिडिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कमिंग टू द फेजेस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स, जब आप इंटरवीन करते हो क्लिनिकल ट्रायल को तो उसमें कुछ पर्टिकुलर फेजेस हैं। तो फेज 1 स्टडी इज द फर्स्ट टाइम ऑफ ऑन ह्यूमंस। अभी आप कोविड वैक्सीन के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, आप जानते हैं कि इस समय जो भी आपके अभी स्पीच ट्रायल्स हो रहे हैं या हुए हैं का है, तो वो जो ट्रायल है उनमें जो फेज 1 ट्रायल होते हैं ये फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में ये ट्रायल शुरू होंगे, दैट इज कॉल्ड फेज 1 ट्रायल्स टू स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स, प्रॉपर्टीज, टॉक्सिसिटी, इंटरैक्शंस, मेजर साइड इफेक्ट एंड डेलिनिएट मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। ये चीजें फेज 1 ट्रायल में देखी जाती है। How the drug is acting, how transforming in our body,
हाउ इट इज एक्सक्रीटिंग, वेदर इट इज डिपॉजिटिंग समवेयर, ये सारी चीजें उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स मींस मूवमेंट ऑफ द ड्रग, कैसे अब्जॉर्ब हुई, कहाँ गई, ये सारी चीजें उसमें देखते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या चीजें उसके साथ है, टॉक्सिसिटी, उस ड्रग के साथ अगर आप मिनिमम डोज दे रहे हो, मैक्सिमम डोज दे रहे हो, किस डोज में जाने के बाद उसमें टॉक्सिसिटीज आ रही हैं, फूड या किसी और चीज के साथ उसके कुछ इंटरेक्शंस तो नहीं है, कौन से मेजर साइड इफेक्ट्स उस ड्रग के साथ हो रहे हैं, और उसकी जो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है वो क्या है, इन सब चीज की जानकारी, सब चीज के लिए हम फेज 1 ट्रायल में ही ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ऑल्सो कॉल्ड एस्केलेशन ट्रायल, जहां पर हम डोज को मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज तक देते हैं। वहां तो जो ऐसी डोज जिसके बाद टॉक्सिक या टुवर्ड इफेक्ट आने शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, और जिससे मिनिमम डोजेज जिसकी वजह से उसमें इफेक्ट आ रहे हो वो मिनिमम डोज होगी। द रेजिम इज सेफ एंड कैन बी परस्यूड फर्दर, और ये इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए होता है फेज 1 ट्रायल कि जो आपने इंटरवीन किया, जो भी इंटरवेंशन आप दे रहे हो ह्यूमंस में, वो पहली बात तो सेफ है कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, इसके बाद ही ये आगे के लिए परस्यू किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ सेफ्टी होता है कि whether it is safe or not. If it is safe, then we can proceed forward for the next phase. This phase generally needs 20 to 40 participants. इतने इसमें participants होने चाहिए, और मेजरली इसमें जो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं उनको एनरोल किया जाता है just to see whether the drug is safe or not. Coming to the next phase, that is phase 2 trial. Once the drug is found to be safe and there is no untoward effect, then done on the patients for which the test regime may be eventually indicated. जब हम फेज 1 की बात कर रहे थे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्दी वॉलंटियर्स। पहले तो हम ये देखें कि जो लोग हेल्दी हैं, क्या इनके लिए डोजेज में ये सेफ है कि नहीं। अगर ये सेफ्टी पैरामीटर्स को पास कर गया है, उसके बाद हम अगली फेज पे जाते हैं, और वहां पर हम यूजुअली जितने भी जो पेशेंट्स हैं जिनके ड्रग डेवलपमेंट को प्लान कर रहे हैं, तो उन पेशेंट्स पे ये टेस्ट रेजिम को हम देते हैं। Objectives are to investigate potential efficacy in a clinical setup, short-term incidence of side effects, identify a dose scheduled for the blend of cases, and to collect further pharmacological data. इसके एम ये है कि आपको पहले तो ये देखना है कि उसके पोटेंशियल इफिकेसी क्या है, कि मतलब वो किस डोज में मैक्सिमम बेनिफिशियल इफेक्ट दे रहे हैं और उसके बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट हैं अगर है तो, और अगर वो साइड इफेक्ट जो उसको आ रहे हैं तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, इसलिए इस समय पे पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। वंस अगर उसे कोई मेडिकेशन दिया भी जाए तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर उसमें किसी तरह के भी साइड इफेक्ट आएंगे, उन साइड इफेक्ट को नोट डाउन किया जाएगा और एट द टाइम उन साइड इफेक्ट को काउंटर भी किया जाएगा या उनको ट्रीट भी किया जाएगा, मैनेज भी किया जाएगा। आइडेंटिफाई ए डोज शेड्यूल फॉर वेरियस काइंड ऑफ केसेस, कि उसमें जो आप डोज दे रहे हैं वो अलग अलग किस किस डोजेज में दिया जा सकता है। मतलब एल्डरली के लिए क्या डोज होगी, यंगर इंडिविजुअल्स के लिए क्या डोज होगी, और इस डोज के जो इफेक्ट्स हैं वो उस लेवल पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन चीजों को भी फेज 2 ट्रायल्स में देखा जाता है। एंड टू कलेक्ट फर्दर फार्माकोलॉजिकल डाटा, और आगे के जो और भी फार्माकोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके फार्माकोडायनेमिक्स हैं, काइनेटिक्स हैं, एब्जॉर्प्शन है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो रहा है, कितने टाइम में वो एक्सक्रीट हो रहा है, उसका टी हाफ क्या है, उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितने टाइम पे अचीव हो जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन फेज 2 ट्रायल में हम आगे देखते हैं। Can also compare drug induced effects in individual with or without comorbidities. इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो ये ड्रग है इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, कुछ तो ड्रग के इफेक्ट है और जो हम नहीं चाहते कि ये ड्रग के साथ कुछ तो एसोसिएटेड होते हैं कि ये ड्रग दी तो इसके ये इफेक्ट आएंगे, वो ड्रग इंड्यूस्ड इफेक्ट है। कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एडवर्स इफेक्ट कहे जाते हैं। और ये जो इफेक्ट है हम उन इंडिविजुअल्स में देखते हैं जिनमें वो बीमारी है, और साथ ही साथ उनमें जिनमें वो बीमारी के साथ कोई और भी बीमारी है। सपोज मैं अगर डायबिटीज का एक पेशेंट को किसी तरह का कोई इंटरवेंशन में फेज 2 ट्रायल में कोई मेडिकेशन उसको इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेटर ऑन आई फाउंड कि जो डायबिटीज के साथ हाइपरटेंसिव भी था उसमें कुछ कोमॉर्बिडिटीज के साथ उसके ड्रग के कुछ इफेक्ट्स क्या एनहेंस हुए या
उसमें कुछ और साइड इफेक्ट्स काउंटर हुए, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम इसमें देखते हैं फेज 2 ट्रायल में। Phase 2 also established that new regime is likely to meet at least the minimal level of efficacy. Suppose अगर मैं कोई ऐसी दवा दे रहा हूँ, सपोज मैं संजीवनी बटी को दे रहा हूँ, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, डोंट टेक माय वर्ड्स, तो मैं वहां पर देख रहा हूँ कि अगर मैं देख रहा हूँ कि ये फीवर को कम कर रही है या नहीं कर रही, तो वो जो उसका मिनिमम लेवल ऑफ एफिकेसी है, सपोज फीवर है, उसके साथ वो और चीजें सपोज बॉडी एक और बाकी जो और फीचर्स हैं उनको कम कर रही है, लेकिन जो मिनिमल लेवल ऑफ एफिकेसी है, जिस इंडिकेशंस पे हम उस ड्रग को प्लान कर रहे हैं, क्या वो उस एफिकेसी को मीट अप कर रही है या नहीं। Crucial phase to establish that regime is going to be useful or not. ये बहुत क्रूशियल फेज है इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये जो रेजिम हम प्लान कर रहे हैं, जिसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या यूजफुल है या नहीं। क्योंकि यूजफुल और वेदर इट इज यूजफुल और नॉट, आपने अभी देखा होगा कि कोविड वैक्सीन कई ऐसी थी जो फेज 1 ट्रायल तो निकल गई, लेकिन फेज 2 ट्रायल के बाद उनके आगे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आए, बहुत सारी और कंडीशंस उसके साथ एसोसिएट हुई, तो वो ट्रायल वहीं पर रोक दिए गए। इसीलिए ये देखना कि यहाँ पर ये यूजफुल है, अगर यूजफुल है then only you can proceed for the phase 3 trial. And in this trial, in this phase, the number of participants are generally 150. Now coming to the next, जब हम phase 2 trial को क्रॉस कर लेते हैं और वो सारी चीजें फेवरेबल हैं, then we go to phase 3 trial. Large scale trial to establish the efficacy and safety that meets the regulatory standard for license. तो पहली चीज लार्ज स्केल ऑफ ट्रायल है। आप अभी देख रहे थे, अभी कोवैक्सीन के ट्रायल अपने जयपुर में भी हो रहे हैं, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल है, और मैं अभी मल्टी सेंट्रिक ट्रायल के बारे में भी बात करूंगा आपसे थोड़ा सा, दो टॉपिक में नहीं है, लेकिन इसमें जो आपका वॉलंटियर्स या जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नंबर होगा, और उन नंबर से हम ये एस्टैब्लिश करते हैं एन नंबर जितना ज्यादा होगा आपके पास उतना ही ज्यादा डाटा होगा, और लार्जर डाटा और जितना बड़ा डाटा उतना ज्यादा ऑथेंटिसिटी उसमें आ जाती है, क्योंकि वो बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लार्ज स्केल ट्रायल टू एस्टैब्लिश द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ दैट मीट द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। जो मिनिमम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, सपोज हमारे DGCI है या कोई और चीजें हैं, या जो हमारे ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, उनके जो लाइसेंसिंग के जो पैरामीटर्स हैं, उनको वो मीटअप कर रही है नहीं कर रही है एफिकेसी और सेफ्टी के पॉइंट पे। देयर मस्ट बी अ कंट्रोल ग्रुप इन दिस फेज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेज में हम एक कंट्रोल ग्रुप भी लेते हैं। अब ये कंट्रोल ग्रुप, अगर मैं कंट्रोल स्टडी शायद लेटर ऑन लेक्चर का जो टॉपिक है उस पर सब बहुत डिटेल पे इस पे बात करेंगे, लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप वाला जो इशू है उसमें हम दो तरह के करते हैं। एक तो हम सिंपल प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी करते हैं, दूसरा हम स्टैंडर्ड कंट्रोल स्टडी करते हैं। जैसे हम कोवैक्सीन के बारे में जानते हैं, आपकी जानकारी में भी होगा कि जो डबल ब्लाइंड स्टडी है जिसमें पता ही नहीं है कि किस में वैक्सीन है और किस में प्लेसिबो है, और वो सारे इंडिविजुअल्स को दिया जा रहा है, उसको एक को कोवैक्सीन दी जा रही है, कोविड की वैक्सीन दी जा रही है, और दूसरे को सेम आइडेंटिकल उसी तरह का लुक अलाइक दिया जा रहा है जो कि प्लेसिबो है। प्लेसिबो कंट्रोल या स्टैंडर्ड कंट्रोल। अब स्टैंडर्ड कंट्रोल का एग्जांपल मैं आपके सामने बताऊं। सपोज मैं हाइपोथायरॉयडिज्म में काम करता हूं और किसी आयुर्वेदिक इंटरवेंशन के ऊपर मैं सपोज काम करना चाहता हूं, सपोज वहां पर मैं अगर दूसरे ग्रुप में लीवोथायरॉक्सिन दूंगा जो भी रिकमेंडेड डोजेस के साथ होगा, तो एक तो मेरा टेस्ट ग्रुप होगा जिसमें मैं मेरी जो इंटरवेंशन है वो या जो टेस्ट ड्रग है उसको दूंगा, और जो दूसरी जो ग्रुप है उसमें मैं स्टैंडर्ड कंट्रोल दूंगा जो उसका ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऐसी मेडिकेशन है जो कि उसमें बहुत लंबे टाइम से और एस्टैब्लिशली यूज की जा रही है, उस मेडिसिन को दूंगा। नाउ एट द एंड ऑफ द डे जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट होगी, आई विल कंपेयर वेदर द टेस्ट आर्म इज as good as the control arm or not।
तो उसमें नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस जो भी आपका जो रिजेक्ट होगी उसके बेसिस पे होगा वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट। यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप होना बड़ा जरूरी है। Subjects are randomly allocated to the test arm and control arm. For this reason, it is also known as randomized control trial. Randomization आप जानते हैं कि without seeing age, sex, caste, creed, किसी भी उसमें बिना bias कंप्यूटर जनरेटेड रैंडमाइजेशन से एलोकेट कर दिया जाए, ये इस ग्रुप में जाएगा, इस ग्रुप में जाएगा, उसमें कौन किस ग्रुप में जाएगा, इसमें यही मेडिसिन दी जाएगी, ऐसा नहीं, वो रैंडमाइज होगा। कभी भी कोई भी जो सीक्वेंस है उसी के बेस पे चलेगा। At least 300 subjects are required for each arm for this trial. ये मिनिमम नंबर है। The number can go up to the several times as you are witnessing nowadays। कितनी 26-30 हजार के आपके सैंपल साइज है फेज 3 ट्रायल में। तो इसमें तो लेकिन जो मैं अगर एक आर्म की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम कंट्रोल आर्म कह रहे हैं, तो मिनिमम 300 सब्जेक्ट शुड बी देयर। Follow-up must be sufficiently long in this phase for the efficacy and side effect to emerge. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, we are witnessing not only the acute or the short-term side effect, but also the long-term side effects also after giving the medication. हम पेशेंट को फॉलोअप में भी काफी लंबे टाइम तक देखते हैं, जिसकी वजह से उसको आगे किसी तरह का कोई और लेट इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, जो कि अनटोवर्ड इफेक्ट है किसी तरह का। Coming to the next one, that is phase 4. This is called post marketing surveillance. Now phase 3 trial भी कंप्लीट हो गया, ओके हो गया, ड्रग वाज टेस्टेड सेफ एंड इफेक्टिव, ये सारी चीजें होने के बाद ये ड्रग मार्केट में आ गई। नाउ मार्केट में आने के बाद भी इसकी सर्विलेंस बंद नहीं होती। मार्केट में आने के बाद भी इस ड्रग को देखा जाता है कि इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। Preference due to cost, ease of ingestion and ready availability is also seen कि उसकी कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, खाने उसको लेने में या उसको दवा की पैलेटेबिलिटी का कोई इशू तो नहीं है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो फेज 4 ट्रायल में देखा जाता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिवनेस इज आल्सो इवैल्यूएटेड। ये सारी चीजें इस पैरामीटर्स पे असेस की जाती हैं। Now coming to the last topic allotted to me, that is quantitative research and qualitative research. As the name suggests, quantitative means when we measure something, use measurable data like height, weight, temperature, age, etc. These are basically under quantitative research. Used to quantify attitude, opinions, behavior, and other defined variables. Based upon numerical measurements, thus tend to use numbers and statistical methods are key indicators and tools. कभी मैं BMI देख रहा हूँ तो BMI आपका एक numerical value है, height देख रहा हूँ, temperature देखो, these are all numerical values. So the numbers plays a very important role, and hence the statistical analysis plays a very important role. It emphasizes on the proof rather than discovery. क्योंकि हमारे पास numerics है, तो ये ज्यादातर इन चीजों को प्रूव कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे। So three primary type: experimental, quasi-experimental, and descriptive and correlational. तो जहाँ पर हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जिसमें हम सीधे सीधे डाटा देख रहे हैं कि हमने देखा कि बिलिरुबिन इतना था, या उसकी AST का लेवल ये था, ALT का लेवल ये था, उस बेसिस पे हम इन सारी चीजों को देखते हैं। Quasi-experimental when there's some sort of experimental and both trial, ये दोनों चीजें हैं, descriptive and correlational. Coming to qualitative research, qualitatively express phenomena like intelligence, honesty, wisdom, quality of health, ये सारे parameters जो हैं which cannot be represented in numbers, केवल उनकी जो qualitative aspect है उनके basis पे जिनको देखते हैं, those are called qualitative research.
प्राइमरीली इट इज एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग फिनोमेनास को, अलग अलग जो हमारे सामने फिनोमेना प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो एम्फेसाइज ऑन डिस्कवरी रादर देन प्रूफ। अब डिस्कवरी जहां प्रूफ की बात करते हैं, जब हमने कहा कि एक पेशेंट ये चीज थी, हमने यहाँ पर इसको ये पर्टिकुलर इंटरवेंशन दिया और हमने इसके बीएमआई में ये चेंजेस देखे जो कि प्रूफ कर रहे हैं कि बीएमआई अगर मान लिया सपोज बिफोर ट्रीटमेंट को 37 नाउ इट इज 26, देन इट इज प्रूविंग दैट ये यहाँ पर उन फैक्ट्स के ज्यादा इन चीजों पे होता है, जैसे मैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में कह रहा हूँ, जहां पर हम स्केल को यूज कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसकी बेस पे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंप्रूव हुई है नहीं, तो ये ज्यादा डिस्कवरी पे फोकस करते हैं रादर देन प्रूफ। So many of the psychological research, case study, ethnography, these falls under qualitative research. I think the topic that has been allotted to me by the honorable Vishwa is a great person, and thank you very much for giving me this opportunity to talk about this particular topic. If any sort of queries, then I'm here to respond to that. थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन भी रहा और थोड़ा सुनने में जरूर प्रॉब्लम आई, पर ये टेक्निकल इशू था, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप चैट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जिससे कि अभी सर कनेक्टेड हैं, हम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकें। और डॉक्टर विनोद गौतम जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो कृपया करके क्वेश्चंस को करेक्ट करके सर के सामने प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद। डॉक्टर विनोद गौतम जी। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आने के बावजूद भी जैसे तैसे हमने जो आयुर्वेद में युक्ति चिकित्सा जो बताई गई ना, सभी स्कॉलर्स को ये भी समझना चाहिए कि ऐसा भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। इतना बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेक्चर होना मुश्किल हो गया था, युक्ति चिकित्सा लगा के सर ने ये लेक्चर पूरा कर दिया है। अब मैं आप डायरेक्ट अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो स्कॉलर्स का या हमारे फैकल्टी मेंबर जो जुड़े हुए हैं उनका कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरीश सर आप जुड़े हुए हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, डायरेक्ट कोई हो आपका तो पूछ सकते हैं। हेलो जी बताइए। सभी को नमस्कार जी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा लेक्चर डॉक्टर साहब को, इसके लिए थैंक्स। मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब जी कि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो संगीताओं में बहुत सारी ड्रग्स अर्बुद के नाम से या ग्रंथि के नाम से लिखी हुई है चिकित्सा के लिए, तो प्रेजेंटली बहुत सी जगह जो है कैंसर के नाम पे चिकित्सा की जा रही है या थीसिस वर्क करवाया जा रहा है, तो उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए उसमें? सर अगर आप सेम नॉमेनक्लेचर के बेस पे ही कर रहे हैं और अगर आप किसी उसके साथ किसी मॉडर्न एंटिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सपोज मैं अगर ये कहूँ मैं गर्भाशय अर्बुद पे काम बात करूंगा और आप अगर उसको यूटेराइन कैंसर के साथ बोल रहे हैं कि ये इसके केसेस हम ले रहे हैं, तो वहां पर अगर वो वहां मेंशन भी है तो अगर आप उस इंडिकेशन पे देख रहे हैं तब तो वहां पर जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसका टैक्स अवेलेबल है पर्टिकुलर अगर आप गर्भाशय अर्बुद करके ही उस टाइटल को रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल यूट्राइन कैंसर को ले रहे हैं और वहां पर किसी अर्बुद का और उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको ये डाटा देना पड़ेगा कि इसकी इस पर्टिकुलर जो एंटिटी जिसको आप फोकस कर रहे हैं जो उस पर इसका इम्पैक्ट है कि नहीं, वहां पर आपको प्री क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा। सर मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया कि इसमें बड़ा क्लियरली है और WHO की अल्टरनेटिव रिसर्च के लिए जो मतलब आयुर्वेदिक और उसके लिए जो गाइडलाइन है उसमें क्लियर कट मेंशन है कि अगर आप किसी नए इंडिकेशन में ट्राई दे रहे हैं तब तो आपको प्री क्लिनिकल स्टडी करनी पड़ेगी, अगर ऑलरेडी इंडिकेटेड है तो इस तरह के किसी तरह की प्री क्लिनिकल स्टडी के लिए आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सर। सर वन मोर क्वेश्चन इज फेज 0 ट्रायल, इसके बारे में पूछा है किसी ने, व्हाट इज फेज 0 ट्रायल? सर फेज 0 ट्रायल जिन्होंने भी पूछा है मैं उनको बता दूं कि देखिए जब हम
एक्सपेरिमेंटल स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, जब एनिमल स्टडी कंप्लीट करते हैं, जब ह्यूमन वॉलंटियर पे जब हम स्टडी करते हैं, और स्पेशली ये देखने के लिए कि ये ड्रग ह्यूमंस में सेफ है कि नहीं, वो जो इनिशियल फेज ऑफ स्टडी है जिसमें मुश्किल से 30-40 लोग होते हैं वॉलंटियर, वो भी हेल्दी वॉलंटियर, जिनको डोजेस दी जाती हैं, और उन डोजेस देने के बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है कि वो दवा कैसे काम कर रही है, शरीर में कितनी देर रुक रही है, उसका हाफ लाइफ क्या है, कितना कब एक्सक्रीट हो रही है, इस पूरे चीज को एसेस किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि वो उसके लिए सेफ है या नहीं। और सेफ्टी एसेस करने के कुछ तरीके तो ये है, कुछ तो जो पेशेंट में डायरेक्ट फीचर आ रहे हैं, जैसे कि उसको बुखार आ गया, जैसे कि उसको पूरी बॉडी एक हो गया, या उसको सर दर्द हो रहा है। और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट होता है जिसको हम एसेस कर सकते हैं लेबोरेटरी में, वो है उसकी लीवर प्रोफाइल, उसकी किडनी की प्रोफाइल, इन चीजों को उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या उसकी AST ALT लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, क्या उसका सीरम क्रिएटिनिन या यूरिया या उसके लीवर फंक्शंस या किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो रहे हैं, तो डायरेक्ट आपकी ऑर्गन टॉक्सिसिटी को सिग्निफाई कर रहा होता है, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो फेज 0 ट्रायल बेसिकली सेफ्टी को प्लान करने के लिए किया जाता है, और वहां पर ड्रग की सेफ्टी ह्यूमंस पे पहले असेस की जाती है। अगर वो वहां पर क्लियर कर जाएगी तभी वो फेज 2 ट्रायल पे जाएगा। And what is difference between phase 0 and phase 1 trial? सर फेज 1 ट्रायल एज आई सेड इट इज सेफ्टी प्रोफाइल को एसेस करने के लिए की जाती है, और जब हम फेज 1 ट्रायल की बात करते हैं वो सेफ्टी के साथ उस ड्रग की इफिकेसी, और साथ ही साथ उसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम डोज है, सर उसको डोज एक्सक्लेशन रिजीम भी बोलते हैं, जिसमें हम सपोज कोई ड्रग दी हमने 50 mg से, और हमने देखा कि इस पे उसके क्या इफेक्ट आ रहा है, फिर हमने देखा कि जिस टारगेट को लेकर चले, सपोज हम फीवर ले रहे हैं, तो हमने देखा कि किस ऐसी डोज है जो मिनिमम डोज है जिसपे ये जो हमारा फीवर वाला पैरामीटर है इसको इफेक्ट कर रहा है। उसके साथ हम जब उसके डोज बढ़ाते हुए जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज क्या है, जिस डोज के बाद पेशेंट को अगर इससे ज्यादा डोज दी तो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं उस ड्रग पे, तो वो उसकी मैक्सिमम डोज है, दैट इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। वो भी आइडेंटिफाई फेज 2 में ही होती है, मींस मिनिमम कंसंट्रेशन और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज के बीच का जो वो लाइन है, उसके बीच का जो स्पेस है, वो आपका उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है ड्रग का, उसको भी एसेस करने के लिए फेज 2 ट्रायल किया जाता है। बेसिकली फेज 1 में हम सेफ्टी देख रहे हैं, फेज 2 में सेफ्टी, एफिकेसी, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज और साइड इफेक्ट्स इनको और ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। गुड सर, थैंक यू सर। और सर इसमें था अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस। सर अनस्ट्रक्चर्ड जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे आपने कोई स्टडी प्लान करी, तो उसमें एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड ज्यादा, जैसे सपोज आपने पूरा प्लान किया कि मैंने ये पैरामीटर असेस करने, और उन पैरामीटर्स के बेस पे मेरे पास ये आउटकम्स है और उनको मैंने असेस किया। वहीं जहाँ पर हम अनस्ट्रक्चर्ड वो करते हैं, वहां पे जो हमने पूरी एनालिसिस की थी उसमें से कई चीजें जो मिस आउट हो रही होती है उन चीजों को देखा जाता है। तो मेरे को एक बार इसको भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सर रिस्पॉन्ड कर दूंगा जी सर, मेरे को इसकी थोड़ी डिटेल और देखनी पड़ेगी। जी सर, जी सर। स्कॉलर RCT ट्रायल कौन सी फेज में होगी? स्कॉलर RCT ट्रायल, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो हम लोग करते हैं, ये सारे सर फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। ओके। फेज 0 इज प्री क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, ये होगा। और कोई क्वेश्चन किसी का कोई पूछ भी सकता है अनम्यूट करके, अगर कोई हो, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर हरीश बाकुनी सर, आपने इतने चैलेंजिंग टाइम में भी अपना ये प्रेजेंटेशन पूरा कर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और निवेदन करता हूं डॉक्टर राहुल जी से कि अग्रिम स्पीकर से जुड़ने का कृपा करावें। डॉक्टर राहुल पाराशर जी।